आपका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ही आने वाला है, ठीक है। तो परसुएडेड आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 वाला जो है हमारा पैसेज है, इसको हमको बिल्कुल ठीक से पढ़ना है पैसेज को और इसके क्वेश्चंस देना है। तो दोस्तों पैसेज का तरीका मैंने पहले भी बताया है कैसे करते हैं हम लोग। हमारा जो अप्रोच है पैसेज को करने का बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पैराग्राफ मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरी बार उसी पैराग्राफ को थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा। ऐसे करके हम लोग पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना है, समझना है, कोशिश करना है जितना अच्छे से आप लोग समझ सको कोशिश करो, क्योंकि एक बार पैसेज समझ में आ गया मतलब 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में आ गए, ठीक है। क्योंकि आंसर्स बहुत ईजी होते हैं, सारे पैसेज बेस्ड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग करना यहाँ पे शुरू करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। A few weeks ago, if you saw someone wandering around your neighborhood starting at their phone, अच्छा ये staring है, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, staring है, ठीक है, staring at their phone, you might have assumed they were lost. Now, it would not be too much of a stress to think that they are busy locating, capturing, battling or training fictional creatures called Pokemon. Welcome to Pokemon Go, the free-to-play location-based augmented reality game that has taken the world by storm since its release on July 6, 2017. For those that are unfamiliar with the Pokemon brand and wondering what the latest hoopla is all about, here is a brief rundown. ठीक है दोस्तों, अभी हम केवल रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन लास्ट में होगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको फास्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। A few weeks ago, if you saw someone wandering around your neighborhood staring at their phone, you might have assumed they were lost. Now, it would not be too much of a stress to think that they are busy locating, capturing, battling, or training fictional creature called Pokemon. Welcome to Pokemon Go, the free-to-play location-based augmented reality game that has taken the world by storm since its release on July 6, 2017. For those that are unfamiliar with the Pokemon brand and wondering what the latest hoopla is all about, here is a brief rundown. चलिए let's move on to the next slide. Next हमारा है Pokemon first emerged in 1995 as a Nintendo video game. Through the decades, it has grown into a massive franchise which includes trading card games, animated movies, and television shows, toys, and comics. While popular, it was primarily aimed at children and nostalgic adults who played the game when they were young. Okay, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। Pokemon first emerged in 1995 as a Nintendo video game. Through the decades, it has grown into a massive franchise which includes trading card games, animated movies, and television shows, toys, and comics. While popular, it was primarily aimed at children and nostalgic adults who played the game when they were young. Next पढ़ते हैं। Ironically, the idea of creating the augmented reality game that has made Pokemon a household name from an April Fool joke. ठीक है, थोड़ा फास्ट।
Ironically, the idea of creating the augmented reality game that has made Pokemon a household name from an April Fool joke. आगे पढ़ते हैं. On April 1st, 2014, Google Inc. announced Pokemon Masters as app that would allow people to hunt the monsters using Google Maps. Though just a prank, the ensuing enthusiasm caught the attention of San Francisco-based startup Niantic Lab and its founder. एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं. On April 1st, 2014, Google Inc. announced Pokemon Masters as an app that would allow people to hunt the monster using Google Map. Though just a prank, the ensuing enthusiasm caught the attention of San Francisco-based startup Niantic Labs and its founder. हाँ, ये कंटिन्यू है. इट्स फाउंडर जॉन हैंकी. एक मिनट. Yes, its founder John Hanke, the team whose first augmented reality mobile app game Ingress has been downloaded more than 12 million times, decided to turn Google's prank into a reality by partnering with Nintendo to create Pokemon Go. अब थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं कि फाउंडर जॉन हैंकी, द टीम whose first augmented reality mobile app game Ingress has been downloaded more than 12 million times, decided to turn Google's prank into a reality by partnering with Nintendo to create Pokemon Go. Next पढ़ते हैं. Similar to previous Pokemon games, players travel the world to capture and battle the monsters in their quest to become the greatest Pokemon trainers. However, while the trip in the previous games were imaginary and conducted within the confines of the room, Pokemon Go forces player to get off their chairs and venture outside. That's because the game uses the phone's GPS and camera to help players find Pokemon in the real world, as well as discover various landmarks or Pokestops which offer items that experience points. This could mean finding a Rattata in your backyard, a Pidgey around the blocks, or a Pokestop at your favorite neighborhood ice cream parlor. चलिए एक बार पढ़ते हैं थोड़ा सा फास्ट. Similar to previous Pokemon games, players travel the world to capture and battle the monster in their quest to become the greatest Pokemon trainer. However, while the trips in the previous games were imaginary and conducted within the confines of the room, Pokemon Go forces players to get off their chairs and venture outside. That's because the game uses the phone's GPS and camera to help players find Pokemon in the real world, as well as discover various landmarks or Pokestop which offer items and experience points. This could mean finding a Rattata in your backyard, a Pidgey around the block, or a Pokestop at your favorite neighboring ice cream parlor. आगे देखते हैं. चलिए ये हमारा आ गया क्वेश्चन. दोस्तों हमने इसको 2 बार पढ़ा. हमने ट्राई किया कि इसके अंदर पता करें कि क्या है. अब
क्या पता चला इसमें, एक चीज पता चली कि एक पर्टिकुलर गेम के बारे में पूरा का पूरा आपका पैसेज है और बहुत से बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ये गेम पता है। पॉकेमोन आप लोगों ने खेला भी होगा और जिसने नहीं खेला उसके लिए नया है। तो ये एक गेम है और उसी में एक नया गेम लॉन्च हुआ, कौन सा, पॉकेमोन गो। तो अगर पूरा पैसेज अगर आपने ध्यान से एक बार पढ़ा भी है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो हमारा पैसेज है ये किसके बारे में है, ये आपका पॉकेमोन गो के बारे में है। और वो पॉकेमोन गो में कैसे जो नया गेम है वो कैसे चेंज हुआ, पुराना गेम कैसा था, उससे है ना, उसी के बारे में पूरा का पूरा पैसेज है। चलिए तो अब हमने रीडिंग की, अब हम इसको पूरा समझते हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, a few weeks ago if you saw someone wandering around your neighborhood staring at their phone you might have assumed they were lost। चलिए तो ये स्टार्टिंग हो रही है कि भाई कुछ हफ्ते पहले, है ना, मतलब जब ये पैसेज लिखा गया तब से कुछ ही हफ्ते पहले अगर तुम जो है, अगर तुमने किसी को देखा है ना जो कि वेंडरिंग अराउंड, जो इधर उधर भटक रहा है ना, वेंडर कर रहा है, योर नेबरहुड, आड़ोस पड़ोस में आपके इधर उधर भटक रहा है और वो स्टेयर कर रहा है, देख रहा है, घूर रहा है, स्टेयरिंग, अपने फोन की तरफ देख रहा है, तो अपने को क्या लगता है उस केस में, हमको ऐसा अज्यूम होता है जैसे कि वो क्या हो गए हैं, गुम गया है। ठीक है ना, जब हम किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जो फोन पे इधर उधर बार बार देख रहा है, इधर उधर भटक रहा है, हमको लगता है कि ये कहीं पर भटक गया हो। पर now it would not be too much a stress to think that they are busy locating, capturing, battling or training fictional creatures called Pokemon। अब हमको समझ में आया कि असल में वो बंदा अपने मोबाइल में करता क्या है ना। ऐसा ये गेम, पोकेमोन का गेम ऐसा हो गया कि लोग जो है सड़कों पे घूमते हैं और कुछ ना कुछ कार्ड्स वगैरह, कुछ हिंट्स वगैरह, पोकेमोन गेम खेलते हैं एक्चुअल में वो। देखो नाउ ये जो है बहुत कठिन नहीं होगा हमको ये पता करना, टू थिंक दैट दे आर एक्चुअल में वो किस काम में बिजी है, वो बिजी है कुछ चीजें लोकेट करने में या कुछ चीजें कैप्चर करने में, कुछ बैटल वगैरह करने में, या एक तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं। किसको ट्रेन कर रहे हैं, एक फिक्शनल क्रिएचर है जिसको कहते हैं पोकेमोन। पोकेमोन को ट्रेन करने में वो बिजी है। ठीक है, ये है हमारा नया गेम, क्या, वेलकम टू पोकेमोन गो। ये क्या है, द फ्री टू प्ले लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड reality game that has taken the world by storm since its release on July 6, 2017। कि ये एक नया गेम है जो पोकेमोन पहले गेम था जो कि लोग कमरे में बंद होकर अपने मोबाइल में खेलते थे। ये पोकेमोन गो एक ऐसा स्पेशल गेम हो गया जिसमें आप अपने आप को बंद कमरे में घेर के खेलते नहीं हो, आप बाहर निकलते हो और एक तरह से घूमते रहते हो, वंडर करते रहते हो, अलग अलग लोकेशंस को ट्रेस करने का काम करते हो। ठीक है, वही ये बता रहे हैं कि देखो इसमें क्या हो रहा है कि यू आर वेलकम। देखो क्या बताया, वेलकम टू द गेम फॉर पोकेमोन गो। ये एक्चुअली क्या है, एक फ्री टू प्ले गेम है। ठीक है, और लोकेशन बेस्ड गेम है और ऑगमेंटेड रियलिटी के बेस्ड गेम है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब हमको लगता है कि वो रियलिटी है बट एक्चुअल में वो सब कुछ गेम है, कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ऐसा गेम है जो कि जिसने पूरे वर्ल्ड को टेकन ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरा एक वर्ल्ड को डोमिनेट उसने एक तरह से कर लिया है बाय स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब एक झटके में। ठीक है, सब बच्चे जो है बहुत ज्यादा इसके डाउनलोड्स हुए और बच्चे बहुत पसंद करने लगे उसको। सिंस इट्स रिलीज, जब से रिलीज हुआ तब से बिल्कुल छा गया ये गेम। कब हुआ रिलीज, 6 जुलाई 2017 को रिलीज हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे देखो, फॉर दोज दैट आर अनफेमिलियर विद द पोकेमोन ब्रांड एंड वंडरिंग व्हाट द लेटेस्ट हुपला इज ऑल अबाउट, हियर इज अ ब्रीफ रनडाउन। तो ये अब उन लोगों के लिए है जो इस गेम के बारे में नए हैं, जिनको पता नहीं है कि भाई ये पोकेमोन ब्रांड असल में होती क्या है, और वंडरिंग मतलब वो ऐसे ही सोच रहे हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं कि ये जो लेटेस्ट हुपला, हुपला का मतलब है आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ये क्या हुआ है या क्या क्या
बोलते ना एक शुद्ध देसी लैंग्वेज में कि ये क्या झमेला है या क्या चीज है ये, है ना। तो इस तरीके की यहाँ पे बात हो रही कि लेटेस्ट क्या धमाका है ना, इसके बारे में हम लोग रन डाउन मतलब इसकी थोड़ी सी ब्रीफ में जान लेते हैं कि क्या है। तो देखो किसकी बात हो रही है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे इस पोकेमोन की थोड़े इतिहास में जा रहे हैं, ठीक है, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो पोकेमोन है ये सबसे पहले कब आया था, 1995 में आया था, याद रखना, ठीक है। और इसको स्टार्टिंग में जो है इस पोकेमोन का जो असली जो नाम पड़ता था पहले 1995 में वो था निंटेंडो वीडियो गेम, ठीक है ना, ये इसका नाम था निंटेंडो वीडियो गेम। फिर क्या हुआ, थ्रू डिकेड्स मतलब कुछ साल जो गुजरे 10 साल, उसके बाद जो है इट हैज ग्रोन, धीरे धीरे ये 10 साल के अंदर कैसा बन गया, ग्रो हो गया, एक मैसिव फ्रेंचाइज, बहुत बड़ी ब्रांड बन गई, एक फ्रेंचाइज के रूप में ये गेम उभर के सामने आया, विच इंक्लूड। और अब अगर हम देखें तो आज पोकेमोन के बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे ट्रेडिंग कार्ड गेम्स हैं इसके, और इसके कुछ एनिमेटेड फिल्में इसकी बनती हैं, मूवीज बनती हैं, कुछ टेलीविजन के शोज बनते हैं, पोकेमोन के टॉयज आपने देखे होंगे, और इसकी कॉमिक्स भी है। बहुत डाइवर्सिफाई इन्होंने कर लिया अपना बिजनेस, अलग अलग तरह से ये सेल्स होता है, मार्केट में आपको पोकेमोन की ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, वाइल पॉपुलर इट वाज प्राइमरीली एम्ड एट चिल्ड्रन एंड नॉस्टैल्जिक एडल्ट हु प्लेड द गेम व्हेन दे वर यंग। तो ये शुरू में तो ये किस पर फोकस किया गया था, बच्चों के ऊपर फोकस थे, और कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसे लोग जो अपने पुराने ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है, जो पुरानी जो यादें हैं या जो बचपन में जो गेम्स वगैरह हैं या जो हमेशा पुराने ख्यालों में खोने में के आदी होते हैं, उनको नॉस्टैल्जिक बोलते हैं। तो ऐसे एडल्ट्स के लिए जो हमेशा ये गेम्स कभी छोटे थे तब खेला करते थे, तो उन बच्चों और ऐसे शौकीन एडल्ट्स के लिए ये गेम बनाया है। अब देखो, आयरॉनिकली का मतलब होता है व्यंग्यात्मक तरीके से, ठीक है, व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग्यात्मक तरीके से क्या हुआ कि द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग, इसका जो creating the augmented reality game that has made Pokemon a household name from an April Fool joke। तो ये बेसिकली एक व्यंग मारते हुए कि इसको एक तरह से एक अप्रैल फूल जोक की तरह भी कंपेयर करते हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना हिट हो जाएगा, पर असल में ये हिट हो जाएगा। पर इसको अप्रैल फूल्स जोक क्यों बोलते हैं, मतलब जब ये शुरू हुआ था तो एक तरह से एक प्रैंक की तरह इसको शुरू किया गया था, इसको एक प्रैंक, एक मजाक की तरह इसको शुरू किया था। गूगल ने सबसे पहले मजाक की तरह इसको, इस गेम को शुरू किया था कि सब लोग कहीं भी आपस में कहीं जाएंगे, फिर एक कार्ड मिलेगा, कुछ एक प्रैंक मिलेगा, इस तरीके का कुछ शुरू किया था। लेकिन देखो उसकी हिस्ट्री के बारे में पूरा बताया है अभी, है ना। और 1 अप्रैल को किया था ये प्रैंक, और ये असल में देखो इतना बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन शुरुआत में जब इन्होंने बनाया था तो ऐसा कुछ इनका विचार नहीं था। देखो क्या था, क्या इंसिडेंट क्या था पूरा इसमें बता रहे हैं। ऑन अप्रैल 1, है ना, ये कब की बात है, 1 अप्रैल की बात है 2014 की, जब गूगल जो है, गूगल INC जो है, उन्होंने ये एक अनाउंस किया था, क्या, पोकेमोन मास्टर्स करके अनाउंस किया था। एक एप्लीकेशन थी, ये क्या थी, एक ऐप थी, है ना। वो क्या करेगी, देखो इस ऐप से क्या होगा, दैट वुड अलाउ पीपल टू हंट, ये लोगों को एक तरह से उनको बोलेगी कि आप ये ऐप में जाओ और फिर आपको ना इस ऐप के थ्रू आप किसी मॉन्स्टर को पकड़ सकते हो, किसी राक्षस को पकड़ सकते हो। असल में राक्षस कुछ था नहीं, लेकिन आप मार्केट में जाके किसी राक्षस की तलाश कर सकते हो, है ना। और कैसे, अपने गूगल मैप के जरिए जो है असल में। तो ये क्या था, जाहिर सी बात है ये एक जोक था, एक तरह से प्रैंक इन्होंने किया था, है ना। दो जस्ट अ प्रैंक, देखो क्या था ये केवल एक प्रैंक था। लेकिन क्या हुआ कि लोग इस गेम से इंशुइंग इंथुजियाज्म, मतलब लोग इतने एक्साइट हुए इस गेम से, इतने वो हुए कि अच्छा बाद में इतना ये हिट हो गया कि इस चीज को किसने देखा, एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक स्टार्टअप, एक कंपनी जिसका नाम था निएंटिक लैब।
ये जो निएंटिक नाम कंपनी थी और इसके जो फाउंडर थे, है ना, इनके जो फाउंडर थे, इन लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया गूगल का आइडिया था। और ये कंपनी जो निएंटिक जो है उसको एक आइडिया पसंद आया। कौन था इनका नाम? जॉन हैंकी। ये जो है इसको ये आइडिया बहुत पसंद आया और ये टीम ने क्या करा बाद में, फॉर द टीम फर्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल ऐप गेम बना दिया उन्होंने। पूरा इसके कॉपी करते हुए इसके हिसाब से एक मोबाइल ऐप का गेम बना दिया और उस गेम का नाम था क्या? इनग्रेस। क्या नाम था इसका? इनग्रेस, है ना। इनग्रेस हैज बीन, और ये आप देखो इतना ज्यादा डाउनलोड हुआ उस टाइम, 12 मिलियन 2014-15 में 12 मिलियन जो है टाइम लोगों ने उसको डाउनलोड किया और डिसाइडेड टू टर्न गूगल्स प्रैंक इनटू रियलिटी बाय पार्टनरिंग विथ निंटेंडो टू क्रिएट पोकेमोन गो। बाद में जो है ये इन्होंने पार्टनर किया किससे? निंटेंडो से। देखो ये क्या था इसका नाम? निएंटिक। हाँ, निएंटिक। और ये इन्होंने फिर गूगल से पार्टनरशिप की और बाद में इन्होंने इसी को एक गेम बना दिया। क्या गेम था इसका नाम? पोकेमोन गो। मतलब इसकी शुरुआत गूगल ने की थी 2014 में और एक प्रैंक की तरह, मजाक की तरह किया था, है ना, ताकि लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। लेकिन एक कंपनी को इसका आइडिया अच्छा लगा, उस पर इन्होंने काम किया, पूरा डिजाइन किया अच्छे से वीडियो गेम, और इन्होंने रियलिटी में इसको एक गेम बना दिया और आगे चल के गेम क्या बन गया आपका? पोकेमोन गो गेम बन गया। अब ये तो गेम के बारे में था। अब इस गेम में और जो पहले का जो पोकेमोन का जो गेम था, दोनों में फर्क क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में दोनों के बीच का फर्क दिया हुआ है। देखो, सिमिलर टू प्रीवियस पोकेमोन गेम, है ना। देखो इसमें दोनों में क्या सिमिलरिटी है? जो पहले का जो पोकेमोन का जो गेम था और अभी का जो गेम है, मतलब पोकेमोन गो और पोकेमोन में क्या सिमिलरिटी है? देखो क्या सिमिलरिटी है? प्लेयर ट्रैवल द वर्ल्ड टू कैप्चर द battle the monster in their quest to become the greatest Pokemon trainer। दोनों ही कंडीशन में दोनों ही पोकेमोन जो एक फिक्शनल इनका जो एक कैरेक्टर है वो उसको ट्रेन करते हैं कि वो क्या करे? मॉन्स्टर को टारगेट करे या मॉन्स्टर को खोजे, है ना, मॉन्स्टर को पकड़े, उससे लड़े, है ना, उसको कब्जा करे। ये दोनों का था। लेकिन दोनों में क्या फर्क है कि while the trip in the previous game were imaginary, कि पहले वाला जो पोकेमोन था उसमें कोई ट्रिप जो थी वो सब की सब वो गेम के अंदर थी, वो सब इमेजिनरी थी। और वो क्या थी? कंडक्टेड विद इन द कन्फाइन ऑफ द रूम। वो रूम के अंदर ही थी, मतलब जो कुछ भी था वो सब आप जो भी कर रहे थे वो सब फिक्शनल था, है ना। आप एक कमरे में बैठे हो, एक बेंच पे बैठे हो, बस उसी में गेम खेल रहे हो, उसी में आपका जो आपका पोकेमोन है वो सब दुश्मनों को मार रहा है, अलग अलग लोकेशन पे जा रहा है, कुछ भी ट्रेस कर रहा है, कुछ कार्ड्स वगैरह ढूंढ रहा है ना। मतलब फर्स्ट गेम में आप कहीं बाहर जाना नहीं होता था, लेकिन ये जो नया गेम इन लोगों ने बनाया उसमें एक्चुअल में जीपीएस की मदद से आप नई नई लोकेशंस पे जाते हो और आपको फिर वो पोकेमोन से रिलेटेड गिफ्ट्स भी मिलते हैं और कुछ मॉन्स्टर के सिंबल्स हैं वो भी मिलते हैं, है ना। मतलब एक्चुअल में आप घूमते रहते हो, है ना, मतलब मार्केट में आप जाते भी हो मोबाइल लेके। तो बहुत फर्क देखो कितना डिफरेंस आ गया। इसमें क्या था? पोकेमोन फर्स्ट में केवल कन्फाइंड टू रूम, एक रूम तक सीमित था, पर इसमें क्या हुआ? पोकेमोन गो फोर्सेस प्लेयर टू गेट ऑफ देयर चेयर्स, बाहर निकले, खड़ा हो अपनी चेयर से, एंड वेंचर आउटसाइड। मतलब इसमें गो में एक जो प्लेयर है वो घर के बाहर भी निकलता है। क्यों? That's because the game uses the phone's GPS। एक तो ये गेम फोन का जीपीएस भी यूज करता है, कैमरा भी यूज करता है, ताकि प्लेयर को क्या बता पाए? पोकेमोन बता पाए कहां पर है? इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में उसको पोकेमोन दिखा पाए। अच्छा, उसके अलावा और क्या करें? एज वेल एज डिस्कवर वेरियस लैंडमार्क, अलग अलग चिन्ह बताए, है ना, या लैंडमार्क को क्या बोलते हैं? पोक स्टॉप्स, अलग अलग पोक स्टॉप्स उसको दिखाए। ठीक है, विच ऑफर, ये पोक स्टॉप पे ये जैसे ही जाएगा ना खिलाड़ी तो उसको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, कहीं शॉप पे लगा होगा, कहीं स्टॉल या कुछ ऐसा लगा होगा। ठीक है, दिस कुड मीन फाइंडिंग, ये देखो ये रेड टाटा एक तरह का साउंड या कुछ ऐसा सिंबल है, या कुछ हो सकता है कोई कार्ड है, या कोई इस तरह का कोई मोनो वगैरह कहीं पे लगा हुआ है बैक आपके आसपास, बैकयार्ड आपके घर के आसपास, या फिर एक
पिडगे करके कोई एक चिन्ह है, कोई साइन है, ठीक है, एक बर्ड जैसा कुछ है, आपको कहीं वहां पे दिखेगा, मार्केट में कहीं भी जाओगे तो अराउंड द ब्लॉक्स के आसपास दिख जाएगा आपको, या फिर कुछ पॉक स्टॉप्स हैं आपकी फेवरेट नेबरहुड के आसपास, आपके आइसक्रीम पार्लर के आसपास। तो ये सारी चीजें आपको सरप्राइजेस मिलती जाएगी। मतलब आप एक्चुअल में ये गेम खेलते हो तो आप बाहर निकल जाते हो घर से, ठीक है, घर से बाहर निकल जाते हो और उसके आसपास आपको ये 3 चीजें दिखती है ना। देखो ये क्या क्या नाम है, एक तो पोक स्टॉप्स जहाँ पे स्टॉपेज आप लेते हो, रट्टाटा, ये एक तरह से एक साउंड है, एक हैंगिंग ट्विटरिंग कुछ इस तरह का साउंड होता है ये, और एक आपका कौन सा वर्ड है, पिडगे। ये 3 जो है ये ऐसे कुछ कार्ड्स या कुछ इस तरह के, जो लोग ये पोकेमॉन गो जिन्होंने खेला है उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है, हालांकि मैंने इस गेम को नहीं खेला है ना, बट ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको उसके कोई ना कोई साइन दिख जाएगा वो गेम का, ठीक है। चलिए, तो ये काफी है हमारा समझने के लिए कि किस प्रकार से पुराना जो पोकेमॉन था वो नए पोकेमॉन से कैसे अलग है। पुराने पोकेमॉन एक नॉर्मल गेम की तरह है जिसमें हम लोग गेम खेलते हैं और वंडर करते हैं, लेकिन नया वाला पोकेमॉन इतना एडवांस है कि उसमें जीपीएस यूज होता है, कैमरा यूज होता है, और एक्चुअल में जो खिलाड़ी है वो बाहर, घर के बाहर जाता है, उसको कुछ सरप्राइजेस मिलती हैं, लोकेशंस जैसे जैसे वो गेम उसको बताता है उस हिसाब से उसको कुछ सरप्राइजेस मिलते हैं और वो उस मॉन्स्टर को मारने में उसको हेल्प मिलती है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं उसको। और ये 95 में सबसे पहले हुआ था, उसका कैसे इन्होंने शुरुआत किया, वो सारी चीजें बताई इसके अंदर। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब बहुत इजी पड़ जाएगा आपके लिए करना। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस ऑफ दिस लेटेस्ट गेम। हमको बताना है कि पुराने गेम में और इस गेम में दोनों में क्या फर्क है। तो क्या लिखा है, इट इज प्राइमरली एम्ड एट चिल्ड्रन एंड एडल्ट हु प्लेड गेम अर्लियर। तो ये तो दोनों में है भाई, पुराना जो पोकेमॉन था वो भी बच्चे और एडल्ट जो इसके शौकीन थे वो लोग खेलते थे, तो ये तो कोई फर्क नहीं है, ये तो डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। फिर ऑल वो तो बाद में देखेंगे। क्या लिखा है, द गेम आर इमेजिनरी एंड कंडक्टेड विद इन द कन्फाइन ऑफ रूम। ये हो सकता है भाई, पहले का जो गेम्स था ना वो क्या था, इमेजिनरी था, वो केवल बस हमको ऐसा लगता था कि हम घूम रहे, पर एक्चुअल में घर में ही बैठे होते थे, और विद इन द कन्फाइन ऑफ रूम, रूम के अंदर ही खेला जाता था। हाँ ये फर्क है। आगे देखते हैं, इट फोर्सेस प्लेयर्स टू गेट ऑफ देयर चेयर्स एंड वेंचर आउटसाइड। कि ये क्या करता है, खिलाड़ियों को फोर्स करता है ना, ये क्या करता है, खिलाड़ियों को फोर्स करता है कि उठे और अपनी चेयर से बाहर जाए। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस ऑफ लेटेस्ट, इसमें क्या फर्क है कि ये फोर्स करता है। चिल्ड्रन द प्राइमरी एम्ड एट चिल्ड्रन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस। देखो एक सभी डिफरेंस की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है वो हमको देखना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ऑल द अबव तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका ये वाला पॉइंट नहीं जम रहा है। इट इज प्राइमरली एम्ड एट चिल्ड्रन, है ना, ये क्या हो रहा है, इट इज प्राइमरली एम्ड एट चिल्ड्रन हु प्लेड, ये तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा राइट है, कौन सा, ये वाला, इट फोर्सेस प्लेयर टू गेट ऑफ चेयर। ये जो नया गेम है, लेटेस्ट गेम की बात हो रही है, ये जो लेटेस्ट गेम है ये क्या करता है, ये लोगों को फोर्स करता है कि वो अपनी चेयर से उठे और बाहर घूम पाए। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, मतलब डी वाला जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है देख लेते हैं। देखो, ऑन अप्रैल 1 2014 इनग्रेस जो है वो क्या बना था, द फर्स्ट मोबाइल ऐप। अप्रैल 1 2014 में इनग्रेस फर्स्ट मोबाइल ऐप नहीं बना था। देखते हैं, ये देखो 2014 में क्या हुआ था, गूगल ने अनाउंस किया था पोकेमॉन मास्टर करा था, जो कि एक ऐप था जो लोगों को बाहर मॉन्स्टर पकड़ने की इजाजत देता है थ्रू गूगल मैप। तो ये तो गलत इंफॉर्मेशन है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर anyone wandering around your neighborhood might have lost his or her
वे, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है ना। ये ट्रू नहीं है कि कोई भी जो बाहर आपके घर के बाहर घूम रहा है वो अपना कोई रास्ता भटक गया हो, है ना, ये तो कोई बात नहीं हो रही है। सी क्या है, पोकेमोन फर्स्ट बिगेन, पोकेमोन जो है फर्स्ट बिगेन इन 1995 एज अ निंटेंडो वीडियो गेम, ये हो सकता है, देख लेते हैं। तो देखो हाँ ये रहा, देखो फर्स्ट टीम जो है इससे पहले ये रहा 2014 में ये हुआ, लैब हुआ, इंथुजियाज्म, उसके बाद हाँ ये रहा पोकेमोन जो है सबसे पहले इमर्ज हुआ था 1995 में एज ए निंटेंडो वीडियो गेम के फॉर्म में, मतलब ये हमारा सी वाला सही है। पोकेमोन जो है सबसे पहले 1995 में निंटेंडो वीडियो गेम के फॉर्म में, ये आपका ट्रू है दोस्तों, ठीक है। फोर्थ वाला हमारा क्या है, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड जो स्टार्टअप है, कौन सा, निएंटिक लैब वॉज गूगल्स फर्स्ट वर्किंग लैब, नहीं भाई ये एक इंडिविजुअल अलग लैब है। निएंटिक, ये निएंटिक लैब जो है और गूगल की पहली जो वर्किंग लैब है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये आपका डी वाला भी रॉन्ग हो गया। चलिए तो सी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये पैसेज किसके बारे में, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट, इसमें बताना है, मतलब किसके बारे में, क्या पोकेमोन मास्टर के बारे में, पोकेमोन गो के बारे में, गेमर के बारे में, या फिर पॉक्सटॉप के बारे में। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो बात इसमें हो रही है, ये जो नया लॉन्च हुआ है गेम, कौन सा, पोकेमोन गो, इसके बारे में पूरा का पूरा ये पूरा पैसेज है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव द गेम इज प्लेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, किससे खेला जा सकता है गेम, कैमरा, बिल्कुल कैमरा का जिक्र हुआ है, गूगल मैप की भी बात हुई है, मोबाइल जीपीएस सिस्टम की भी बात हुई है, मतलब ये आपका ऑल दी अबव है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पर्टिकुलर पेपर का, देखो द अंडरलाइन वर्ड जो है, आयरॉनिकली जो वर्ड है इन पैराग्राफ सेकेंड, इसका क्या मतलब है ना। आयरॉनिकली का क्या मतलब है, ऑनेस्टली है या सैडली है या अनडाउटेडली है या सरकास्टिकली है। तो देख लेते हैं, ये देखो आयरॉनिकली हमारा जो वर्ड है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आयरॉनिकली द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग, ये जो आइडिया है इसका, किसका, इस ऑगमेंटेड रियलिटी गेम को बनाने का, है ना, जिसने पोकेमोन को एक हाउस होल्ड नेम बनाया, वो किससे आया था, एक अप्रैल फुल जोक से आया था। इसका मतलब है कि ये एक व्यंग की तरह है, मतलब ये आइडिया एक हास्यात्मक तरीके से आया, जिसमें एक केवल एक प्रैंक किया गया था और उसमें ये आ गया। इसका मतलब कि ये इसमें हमारा जो राइट आंसर है, ईमानदारी से, अनडाउटेडली या सैडली नहीं, ये हो जाएगा आपका सरकास्टिकली जो है ना दोस्तों, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये हमने इस MPSI का ये पेपर हमने फिनिश किया, है ना। अब मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, बिल्कुल नया, फ्रेश और एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ।